Welcome to all in our political science class. We are discussing about origin of state, and earlier we saw what is political science, meaning, definition, scope of political science, and we also saw nomenclature of political science, and after it we saw introduction of state and government, what is state and what is government, and after it we saw there are many principles concerning to origin of state, and there are 6 principles concerning to origin of state. We saw last class social contract theory, and in that theory we saw people makes a contract and they made a state, and various principles like divine theory, they were spotted that divine powers makes our state, and after it we saw force theory. Force theory means state made by force, and another theory we saw matra sattatmak siddhant means mother's powers makes state, and another theory pitra sattatmak siddhant means father's powers makes state, and 5th principles last class we saw social contract theory, that people made a contract each other and we saw state. And the last principles concerning to state, its name ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, we can write historical or evolutionary theory, historical or evolutionary theory. And in this siddhant, some authors told us that this is the practical approach principle, because this principle told us, इस सिद्धांत ने हमें ये बताया कि स्टेट वाज मेड बाय ए प्रोसेस, राज्य एक प्रोसेस से बना, राज्य एक प्रक्रिया से बना, एंड इन दैट प्रोसेस देर आर मैनी फैक्टर्स, there are many factors. First factor is मूल सामाजिक प्रवृत्ति, natural social instinct. Second factor was रक्त संबंध, kinship. Third factor was धर्म, religion. Fourth factor was शक्ति, force. Fifth factor was आर्थिक गतिविधियां, economic activities. And 6th factor was राजनीतिक चेतना, political consequence. These all 6 factors made the state, and it was not made a single day. It was made by a process. It was made by a process. राज्य एक दिन नहीं बन गया, बल्कि इसका क्या हुआ है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है. We are living in this state. It was made by a development procedure. It was not made a day. एक दिन में ये राज्य नहीं बन गया, बल्कि इसका क्या हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है. And in this development we saw first point मूल सामाजिक प्रवृत्ति. We have some basic features. We have some basic nature. One author you know about Arastu. Arastu told us man is a social animal. Arastu told us that man is a social animal. मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है. और यदि कोई व्यक्ति एक कहता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, मुझे लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो वो व्यक्ति या तो जंगली जानवर है और या फिर देवता है. बिकॉज मैन, ऑल मैन हैव सम सोशल रिक्वायरमेंट, and our social requirement
insist us, our social requirement made us that we should live with each other. हमें सभी के साथ क्या है, मिलजुल के रहना चाहिए। और ये जो हमारी मूल सामाजिक प्रवृत्ति है, हमारा जो एक नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट है, ये हमें क्या है, राज्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। ये राज्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है कि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। मैन, फैमिली, सोसाइटी एंड स्टेट। एंड इफ वी आर लिविंग इन ए स्टेट देन देयर शुड बी ए गवर्नमेंट। वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट मेड सम लॉज। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कानून बनाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो राज्य बना वो हमारी क्या है, इट इज अवर बेसिक नीड। और बेसिक नीड में क्या है, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से कुटुंब बना, कुटुंब से समाज बना और समाज से राज्य बन गया। सेकंड पॉइंट है रक्त संबंध। वन ऑथर टोल्ड अस ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से गाढ़ा होता है। इन आवर फैमिली वी आर सेइंग दैट these are our parents, these are our brother and sister, these are our grandparents, and in our family, grandparents, mother, father, we have blood relation. और जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है उनसे हमारा क्या है, जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। और जो रक्त संबंध था वो हमारे परिवार के सदस्यों से था। और परिवार के सदस्यों में जिस प्रकार से फैमिली को डोमिनेट या तो फादर करते थे या मदर करते थे। फादर या मदर जब पहले परिवार को डोमिनेट करते थे, फिर कुटुंब को करने लग गए, फिर सोसाइटी को करने लग गए और फिर स्टेट को करने लग गए। और इस प्रकार से क्या बन गया, राज्य बन गया। क्योंकि जिस प्रकार से वो फैमिली को लीड करते थे वैसे ही वो आगे चल के किसको लीड करने लग गए, एक स्टेट को लीड करने लग गए। थर्ड वन इज रिलीजन, धर्म। धर्म का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में, इन एंशिएंट पीरियड, इन अर्ली टाइम, दैट टाइम some Hippocrates or some sorcerer was there, we can say तांत्रिक होते थे। और वो क्या है, धर्म के नाम पे लोगों को क्या करते थे, मोटिवेट या डीमोटिवेट करते। कोई काम करवाना होता तो मोटिवेट कर देते थे, मना करना होता था तो डीमोटिवेट कर देते थे। तो धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे हुए, मिल के रहने लगे। और जब धर्म के नाम पे इकट्ठे हुए, मिल के रहने लगे, तब क्या हुआ, लोगों में एक कलेक्टिविटी की भावना आई। और वो जो तांत्रिक थे, सोर्सर थे, वो आगे चल के क्या बन गए, उस कबीले के, उस राज्य के हेड बन गए। तो धर्म के आधार पर भी राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट इज शक्ति, फोर्स। फोर्स का मतलब होता है पावर। कई बार इन एंशिएंट टाइम और इन आदिम अवस्था, प्री स्टेट स्टेज कि जब राज्य नहीं था, उससे पहले की जो अवस्था थी, उस समय क्या है कि कुछ लोग कमज़ोर थे, कुछ लोग पावरफुल थे। तो पावरफुल लोगों ने क्या किया, कमज़ोर लोगों को क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। एंड दैट टाइम एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी, माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस की, जिसके पास शक्ति होती थी वही किस में आ गए, पावर में आ गए। और उनसे क्या बन गया, राज्य बन गया। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये था कि जब आदिम अवस्था से कृषि अवस्था आई, कृषि अवस्था मीन्स दैट टाइम पीपल एंगेज इन फार्मिंग। और उसके बाद आई पशुपालन की व्यवस्था। उसके बाद क्या है कि लोग क्या करने लग गए, बिजनेस करने लग गए। तो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता थी। और वो जो गवर्निंग बॉडी है वो आगे चलकर किस रूप में सामने आई, सरकार के रूप में सामने आई।
और उसके बाद है राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब ये था कि लोगों में धीरे धीरे जब वो एक स्थान पे रहने लग गए तो उनमें धीरे धीरे क्या है, राजनीतिक चेतना आई, और राजनीतिक चेतना ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब हमें क्या बनाना चाहिए, राज्य बनाना चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। In nutshell, we can say that the old type of principles concerning about origin of state, like divine theory, like mother-father theory, like force theory, makes this principle, जितने भी प्रचलित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को मिला दिया और एक नया सिद्धांत बन गया ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी। और इसमें ये पहले पॉइंट में ये है कि ये मनुष्य की क्या है, एक बेसिक नीड है कि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसे परिवार, समाज, कुटुंब सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य बनता है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, उसका जुड़ाव रक्त संबंध के आधार पे होता है, धर्म के आधार पे व्यक्ति में जुड़ाव पैदा होता है, और जो उस जमाने में तांत्रिक सोर्सर होते थे वो क्या बन गए, शासक बन गए। जो कमज़ोर लोगों के ऊपर शक्तिशाली लोगों ने क्या कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जो आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, आर्थिक गतिविधियों को एक रेगुलराइज करने के लिए, नियमित करने के लिए शासक की आवश्यकता थी। और एक ये बेसिक ये था कि ये सब कुछ अगर चल रहा है तो लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, एक राजनीतिक चेतना आई, और हमने ये देखा कि राज्य का उदय हो गया। तो ये लेखक ये कहते हैं कि राज्य एक दिन में नहीं बना, बल्कि राज्य का क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ। It was the main factor that state was made day by day. State was developing day by day. दिन प्रतिदिन उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। And the main thing that all factors made our state. सभी फैक्टर्स ने मिलके क्या किया था, राज्य को बनाया था। That's all from this class. Thank you so much.